चल रहा है बोले। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ठीक हैं आप? तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 10 दिवसीय लेक्चर सीरीज का आज 7वां दिन है। तो सभी लोग, जैसा हमने बोला कि पेन और कॉपी आप लोग रखे होंगे। माइक्रोफोन आप लोग ऑफ कर लीजिए जब तक कि आपको ना कहा जाए ऐसा करने के लिए, और ऐसा तब कहा जाएगा जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा। तो केवल क्वेश्चन पूछने के समय आप माइक्रोफोन ऑन रखिएगा, उसके अलावा आप ऑफ रखेंगे। जब क्वेश्चन पूछ लेंगे उसके बाद तत्काल आप माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर लेंगे। तो चलिए सर, फिर अब थोड़ा सा सर का हम परिचय बता दें। बच्चों, ये बहुत ही गौरवशाली पल है कि जब कि गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेसर्स हम लोगों के बीच में लेक्चर देने के लिए आ रहे हैं। तो आप सबको थोड़ा सीरियस होकर काम करना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट today's lecture. Respected Principal, Professor Ashish Joshi sir, my dear colleague Dr. Brijesh Kumar Mishra ji, and dear students. Welcome to this 7th day online zoology lecture series organized by Department of Zoology, Deen Dayal Upadhyay Government Postgraduate College, Saidabad, Prayagraj. It's our proud privilege to welcome today's eminent speaker, Dr. Wahid Kanwar Balwan, a well-known zoologist, environmentalist, and social thinker currently working as Senior Assistant Professor in the Department of Zoology, Government Postgraduate College, Bhadarwa, District Doda, Jammu and Kashmir. Dr. Balwan did his PhD from University of Jammu in the year 2008. He had several years of teaching and research experience. As a good researcher, he has published about 50 research papers in the national and international journals. And one very remarkable thing about Dr. Balwan is this, that he has published more than 45 books. More than 45 books. He is life member of about 23 academic societies of national and global repute. Moreover, he has successfully organized a number of national and international conferences, workshops, webinars, and delivered so many lectures at several occasions as a good resource person. Besides, he had some more feathers in his cap. He has awarded by more than 33 awards of regional, national, and global repute. Some of them are Senior Scientist Award by Global Environment and Social Association New Delhi, Global Eminent Educator Award by Global Academic Society Lucknow, Fellow of Agriculture and Environmental Technology Development Society, Kalp Lifetime Achievement Award, Best Biology Professor of the Year Award, Researcher Excellence Award 2020, Teacher of the Year Award 2020, Honorary Fellowship, Teacher of the Year Award 2019, Best Teacher Award, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Education Promotion Award, Excellence in Teaching Award, Fellowship of Asian Biological Research Foundation,
इंटरनेशनल हाईएस्ट पब्लिश्ड बुक अवार्ड, बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड, फेलोशिप ऑफ जेशा, इमिनेंट साइंटिस्ट गोल्ड मेडल, ऑनरेरी फेलोशिप ऑफ बीपीएस, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, टीचिंग एंड रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड, मोस्ट इंस्पायरिंग टीचर अवार्ड 2017, भारत ज्योति अवार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, कांग्रेस ऑफ जूलॉजी मेडल, एंड सो मेनी awards he had. Besides, he is DSc and DLIT. So this is very short introduction of Dr. बलवान सर. सर के बारे में हम इतना बता दें कि सर हमारे बहुत ही खास मित्रों में से एक हैं और हमारे मित्र ही नहीं बल्कि पारिवारिक मित्र हैं. इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है. ये हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि सर लेक्चर देने के लिए हमारे बीच हैं. तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम सर का एक बार स्वागत करते हैं और उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि वह अपना लेक्चर आरंभ करें. और एक और बात सर कि हमारे ज़्यादातर से बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, इसलिए अगर आप अपना मीडियम हिंदी ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा. तो बच्चों का भी और सर आपका भी सबका भी स्वागत है और हम सर से आग्रह करते हैं कि वह अपना लेक्चर आरंभ करें. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ये प्रेजेंटेशन विजिबल है बच्चों को? हाँ जी जी सर, विजिबल. ठीक है सर, ठीक है. चिते So, respected Professor Ashish Joshi, Principal, Dr. A.K. Verma, Head Department of Zoology, Dr. B.K. Mishra, Assistant Professor Zoology, Government PG College, Saidabad, Prayagraj, and dear students, good evening to all of you. I will directly start my topic. और जो टॉपिक आपका मुझे अलॉट हुआ है दैट इज बेसिकली द माइक्रोबियल जेनेटिक्स. और माइक्रोबियल जेनेटिक्स में जो सब टॉपिक्स अलॉटेड हैं दैट इज साइटोजेनेटिक टेक्निक्स. साइटोजेनेटिक टेक्निक्स में फिश, गिश, फ्लो साइटोमेट्री एंड क्रोमोसोम पेंटिंग है. नाउ बिफोर आई विल स्टार्ट the main topics, first हमें ये पता होना चाहिए कि what basically cytogenetics is. जैसे आप लोगों ने पहले भी कुछ सेमेस्टर में ये पढ़ा होगा कि cytogenetics जो है it basically includes the two words. एक आता है साइटोलॉजी से, दूसरा आ जाता है जेनेटिक्स से. जेनेटिक्स में हम सिंपली बोलते हैं कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, और साइटोलॉजी जो है हम बोलते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ सेल. जो भी सेल की हिस्ट्री है दैट इज इंक्लूडेड इन द साइटोलॉजी या दैट इज इंक्लूडेड इन द सेल बायोलॉजी. लेकिन जेनेटिक्स जो है फाइनली डिवाइड होती है दो पार्ट्स में. एक आता है साइटोजेनेटिक्स, एक आती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. साइटोजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ क्रोमोसोम लेवल या सेल के लेवल तक रहता है. और अगर हम माइक्रोजेनेटिक्स या अगर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जाएं तो वहां पे हम डायरेक्टली रेफरेंस देते हैं जीन या डीएनए या प्रोटियोमिक्स का. लेकिन सिंस आपका बेसिक कंसेप्ट है तो पहला जो मेन टॉपिक आपका है दैट इज द फिश. लेकिन ये फिश इट इज वन ऑफ द साइटोजेनेटिक टेक्निक और एडवांस्ड साइटोजेनेटिक टेक्निक है ये. लेकिन अब ये फिश वो वाली फिश नहीं है जो हम फिशरीज में पढ़ते हैं या जो आप देखते हो. अगर हम वर्ड फिश का मीनिंग देखेंगे तो इट सिंपली मीन्स फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन फिश टेक्निक है क्या, इससे पहले हमें
जब फिश टेक्निक स्टार्ट करनी होती है, हमारे पास सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास क्रोमोसोम्स होने चाहिए। अच्छी तरह समझना, मैं थोड़ा सा 10 मिनट ब्रीफ दे दूंगा कि ये स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमने फिश टेक्निक में क्रोमोसोम की ही स्टडी करनी होती है, लेकिन क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए स्लाइड्स जिन पे क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो स्लाइड्स हम कैसे बनाएंगे? क्रोमोसोम्स नॉर्मली आप सबको पता है कि क्रोमोसोम की जो स्टडी होती है वो बेसिकली हम ब्लड ले लेते हैं, होल ब्लड। लेकिन ब्लड में भी आप लोगों को ये पता होगा कि ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनमें ही न्यूक्लियस होता है, और उनके न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो जिस टाइम हमने क्रोमोसोम को बनाना है, मींस क्रोमोसोम की स्लाइड को प्रिपेयर करना है, तो हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, और उस टेक्निक को हम कहते हैं लिम्फोसाइट कल्चर। उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट कल्चर। लिम्फोसाइट कल्चर में हमने क्या करना होता है कि जिस भी पर्सन की हमने क्रोमोसोम स्टडी करनी होती है, हम पहले उसका ब्लड लेते हैं और उसका कल्चर लगाते हैं। कल्चर जब हम लगाते हैं, कल्चर मींस यहाँ पे कि जब हमने ब्लड लिया, ब्लड हम लेते हैं उसका 0.3 ml, और उस ब्लड में हम 3 चीजें ऐड करते हैं। एक हमारे पास मीडियम होता है विच इज कॉल्ड एज द RPMI मीडियम। दूसरा जो उसमें होता है सीरम, उसको हम कहते हैं फीटल काफ सीरम। और तीसरा जो होता है उसमें हम डाल देते हैं एक माइटोटिक एजेंट दैट इज कॉल्ड एज द फाइटो हीमो ए ग्लूटेनिन। मैं लास्ट पे डॉक्टर वर्मा सर के पास मटेरियल भेज दूंगा जो मैं प्रेजेंट करूंगा PDF की फॉर्म में, आप उनसे वो मटेरियल वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो उसके बाद क्या होगा कि जब ये 3 चीजें हम उस ब्लड में मिक्स करते हैं, तो साथ में हमने उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक सॉल्यूशन भी डालना होता है। वो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन क्या करेगा कि किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन वगैरह हो उसको रोक देता है। जब ये 4 चीजें ब्लड में हमने डाल दी, उस ब्लड को हम इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, और इंक्यूबेटर में हम टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आप लोगों को इतना पता होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है, इसलिए अब सिंस जो ब्लड सेल्स हैं वो भी हमारी बॉडी का पार्ट है, और उनकी ग्रोथ के लिए भी टेम्परेचर हमें 37 डिग्री ही चाहिए। सो हम क्या कर लेते हैं कि किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, 4 कंपोनेंट्स ले लिए, उनको हमने इंक्यूबेटर में रख दिया, और फिर हम उनको 72 आवर्स के लिए उस इंक्यूबेटर में रख देते हैं। जब हम वहां पे उनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि 72 आवर्स के बाद हम उनको उस जो कल्चर आपने लगाया है, जो आपने कल्चर मेंटेन किया है, हम उसको देखने जाते हैं। जब हमने उसको अच्छी तरह देखा कि वो ठीक है, हम वहां पे एक केमिकल ऐड कर देते हैं, और उस केमिकल को हम कहते हैं कॉल्चिसिन। वो कॉल्चिसिन क्या करता है कि आपने 12th या 11th में पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस। नॉर्मली ये याद रखना कि जब भी हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, तो क्रोमोसोम को हम मेटाफेज स्टेज पे ही ज्यादातर स्टडी करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो क्रोमोसोम की एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजी होती है वो मेटाफेज स्टेज पे ही विजिबल होती है। तो कॉल्चिसिन क्या करता है कि वो क्रोमोसोम्स की डिवीजन को मेटाफेज स्टेज तक रोक देता है, उसके बाद उसको डिवाइड नहीं होने देता, और इसी स्टेज पे हम लोग फिर स्लाइड्स को प्रिपेयर करते हैं। स्लाइड्स को हमने कैसे प्रिपेयर करना है कि जो आपने सेल ले लिए, हमने उनको क्या करना होता है कि सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं, जो भी आपको वो सॉल्यूशन ब्लड वगैरह लिख दिया है। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं पेलेट्स, और उन पेलेट्स को हम मिक्स करते हैं एसिटिक एसिड और मिथनॉल से। वो क्या करते हैं कि इस टिश्यू को सॉफ्ट बना देते हैं। फिर हम 1 या 2 ड्रॉप इसका ले लेते हैं और स्लाइड्स पे डाल देते हैं। और सिंस जब हम स्लाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा हमने डिस्टेंस रखना है जब मैंने वो ड्रॉप स्लाइड पे डालना होता है। उससे क्या हो जाता है कि हर एक सेल जो है वो ब्रेक होता है, वो टूट जाता है।
टूटने के बाद उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और हमारे पास स्लाइड आ जाती है। जब हमारे पास स्लाइड आई, एक दिन के लिए हम उसको ऐसे रखते हैं ताकि वो क्रोमोसोम पूरी तरह मैच्योर हो जाए। फिर हम उनको स्टेन करते हैं और स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देखते हैं और वहां पे हमें क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होते हैं। फिर हम इससे क्या कर सकते हैं कि आप क्रोमोसोम का नंबर भी काउंट कर सकते हो। क्रोमोसोम नंबर को काउंट करने के बाद अगर हमने जो पहली टेक्निक जो हमने पढ़नी है फिश टेक्निक, जिसको मैंने कहा फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इससे पहले हम एक टर्म यूज करते हैं, वो होती है कन्वेंशनल साइटोजेनेटिक्स। कन्वेंशनल मींस बेसिक। जो फिश आती है ये एडवांस टेक्निक है। कन्वेंशनल में हमने क्या करना है कि जब आप स्लाइड प्रिपेयर करते हो, उसको स्टेन करते हो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो आपको पूरा एक सेल के अंदर जितने 46 क्रोमोसोम होते हैं वो नजर आते हैं, अगर नॉर्मल पर्सन का होगा। अगर किसी एबनॉर्मल पर्सन को होगा तो नंबर जो है कम या ज्यादा हो सकता है। फिर हमने क्या करना होता है कन्वेंशनल में केस में कि उस सेल का हम फोटोग्राफ लेते हैं। फोटोग्राफ लेने के बाद हम पूरी तरह उन सेल्स को, उन क्रोमोसोम्स को काउंट करते हैं। फिर काउंट करने के बाद हर क्रोमोसोम के बाहर हम सर्कल देते हैं पेंसिल से और फिर हम उनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब यहाँ पे क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज इनटू 7 ग्रुप्स। 7 ग्रुप होते हैं। अकॉर्डिंगली हम उन जो हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको अरेंज करते हैं। उस कैरियोटाइप से हमें क्या पता चल जाता है कि वेदर जो इंडिविजुअल है वो मेल है या फीमेल है, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है कितना है। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला क्रोमोसोम कौन सा है, कम होगा तो कम क्रोमोसोम किस पेयर पे है। जैसे एक डिजीज आती है डाउन सिंड्रोम, हम बोलते हैं कि डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और 47 क्रोमोसोम जो उसमें होते हैं वो 21 वाला पेयर जो होता है उस पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। इसी तरह एक डिजीज आती है टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल्स में होती है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसमें टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो 45 होते हैं और 45 क्रोमोसोम में जो सबसे कम क्रोमोसोम होता है, मीन जो एक मिसिंग क्रोमोसोम होता है वो एक्स क्रोमोसोम होता है। नॉर्मली जो फीमेल होती है उसमें 2 एक्स होते हैं, लेकिन 45 वाली फीमेल जो होती है, टर्नर फीमेल जो होती है, उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस स्टेरियोटाइप से हमें ये पता चल जाता है। लेकिन अब हमारे पास एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आई है। एडवांस टेक्नोलॉजी में ये होता है कि कभी कभी हमारे पास क्रोमोसोम की जब हम स्टडी करते हैं तो ओवरलैपिंग आ जाती है। मीन सेल जो है वो पूरी तरह, ये क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह सेपरेट नहीं हो पाते और हम उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते कि जो क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी है वो कौन सी है। तो इस केस में हमारे पास जो पहली टेक्निक आती है वो आती है फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, या जिसे हम फिश कहते हैं। और फिश जो है, इट इज ए मेथड दैट कैन बी यूज्ड to detect small deletion and duplication that are not visible using microscopic analysis। मैं आपको पहले ही एक छोटा सा कंसेप्ट दे दूंगा कि फिश में हम क्या करते हैं। स्लाइड हमने लिम्फोसाइट कल्चर से ही बनानी है, वो 3 डेज हमने लगने ही लगने। लेकिन उस केस में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम एक प्रोब यूज करते हैं। प्रोब क्या होता है कि ये भी समझ लीजिए एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, या हम उसे कहते हैं लेबल्ड डीएनए, हम इसको कहते हैं। मींस कि आपने एक केमिकल लिया, केमिकल बेसिस का ही बना होगा, लेकिन उसको हम लेबल करते हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। लेकिन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें हम यूज करेंगे वो, उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कम सतह की होती है। कम सतह का मतलब ये होता है क्योंकि आप देखते हो कि अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो वो उसको डैमेज कर सकता है जब वो किसी के साथ बाइंड हो जाएगा। इसलिए हम वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं जिसकी रेडियो एक्टिविटी जो है बहुत कम है, क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो हमने क्या करना होता है कि जिस टाइम हमने एक स्लाइड प्रिपेयर कर ली तो स्लाइड के ऊपर जो है हम एक सॉल्यूशन डाल देते हैं और उस सॉल्यूशन में हमारे पास प्रोब होता है।
वो उसको हम कहते हैं, प्रोब को हम कहते हैं केमिकली लेबल्ड डीएनए। तो ये प्रोब क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम का एक अपना प्रोब होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने अब सपोज स्टडी करना है डाउन सिंड्रोम, मुझे ऑलरेडी ये चीज पता है कि डाउन सिंड्रोम में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है वो 21 आता है। लेकिन अब नॉर्मल जब मैंने कैरियोटाइप बनाया उसमें वो 21 जो है ओवरलैपिंग क्रोमोसोम्स ओवरलैप थे, तो मुझे वो क्लियर नहीं हो पाया। उस केस में मैं क्या करूंगा कि 21st क्रोमोसोम का प्रोब मैं यूज करूंगा। वो प्रोब क्या करेगा कि जिस टाइम मैं वो स्लाइड के ऊपर डाल दूंगा, वो डायरेक्टली उस क्रोमोसोम 21 के ऊपर बाइंड कर देगा। और फिर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप आती है, दैट इज कॉल्ड एज द फिश एनालाइजर। दैट इज कॉल्ड एज द फिश एनालाइजर। बड़ी कॉस्टली माइक्रोस्कोप होती है, 25 लाख तक आती है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि जब हम वो प्रोब डीएनए या प्रोब जो 21st क्रोमोसोम का जो प्रोब होता है, हम उसको ले लेते हैं। वो भी प्रोब भी कॉस्टली होता है। एक क्रोमोसोम में अगर सपोज कर लीजिए आपने 21st क्रोमोसोम का प्रोब लेना है, तो वो उसकी कॉस्ट जो होती है 1.25 लैक्स होती है। और आप ज्यादा से ज्यादा उस प्रोब से सिर्फ 10 या 11 पेशेंट्स को स्टडी कर सकते हो। एडवांस टेक्निक है, बिल्कुल क्लियर होता है हर एक चीज, लेकिन कॉस्टली अफेयर होता है ये। तो फिर अल्टीमेटली हम इसमें क्या कर लेते हैं कि जब आपने वो प्रोब क्रोमोसोम ले लिया 21st का, स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं हम उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन, तो वो उस अपने पार्टनर क्रोमोसोम को डिटेक्ट कर पाता है और उसके साथ बाइंड अप हो जाता है। जब हम उसको फिश माइक्रोस्कोप के साथ देख लेते हैं, तो फिश माइक्रोस्कोप में हम क्या कर लेते हैं कि वहां पे वो एक, जैसे आप देखते हो कि रेडियो एक्टिविटी उससे निकल जाती है, एक रेडिएशन जैसी आ जाती है। वो मतलब वो जैसे रेडिएट करता है उस चीज को, क्रोमोसोम पे ऊपर रेडिएट करता है। हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर कुछ ना कुछ बाइंड हो रहा है, जिसे एक थोड़ी सी छोटी सी रेज जैसी निकल रही है, और उस रेज को हम कैप्चर कर देते हैं। तो वहां से हमें ये कंफर्म होता है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये पता होता है कि 21st क्रोमोसोम का मैंने यूज किया है। लेकिन ये चीज मैं तब यूज करूंगा जब आप क्रोमोसोम स्लाइड तो ले रहे हो, लेकिन आपको नंबर जो है वो 47 आ रहा है, लेकिन आप कैरियोटाइप नहीं बना पा रहे हो। तो कंफर्म करने के लिए हम 21st क्रोमोसोम का प्रोब यूज करते हैं। वो 21st क्रोमोसोम के ऊपर बाइंड कर देता है, और फाइनली हम उस इमेज को कैप्चर करते हैं। जैसे एक्सरे फिल्म हम निकाल लेते हैं, जो एक्सरे फिल्म में हमें पूरे दिख जाता है वहां पे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो वहां पे एक डॉट सा उस क्रोमोसोम के ऊपर लग जाता है। तो वो डॉट ये मेंशन करता है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो ये वाला है। ये आ गया कि अगर हमारे पास कैरियोटाइप जो है वो नहीं बन पा रहा है, क्लियरली ओवरलैपिंग है। लेकिन फिश का असल में एडवांटेज तब है अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रही होगी। नॉर्मली क्रोमोसोम की जो चेंजेस होती है, हम दो तरह की चेंजेस पढ़ते हैं, एक होती है न्यूमेरिकल, एक होती है स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल में हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। बट अगर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस में आपने 4 टाइप्स पढ़ी होंगी। एक होती है डिलीशन, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। दूसरी होती है डुप्लीकेशन, जिसमें क्रोमोसोम में अपना ही पार्ट जो है वो डबल कॉपीज बनाता है और ऐड हो जाता है। तीसरी होती है इन्वर्शन, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद उसका 2 ब्रेक्स उसमें आ जाती हैं। 2 ब्रेक्स होने के बाद जो ब्रोकन फ्रेगमेंट होता है वो लॉस हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम आपस में रीजॉइन करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो इन्वर्टेड मींस कि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में 2 ब्रेक्स हो गई, ब्रेक होने के बाद वो ब्रोकन पार्ट जो है वो उस क्रोमोसोम में दोबारा से ज्वाइन होगा, लेकिन उसकी सीक्वेंस जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी हो जाती है। दैट इज द इन्वर्शन। और चौथी जो या फोर्थ जो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है,
उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में हम बोलते हैं कि दो क्रोमोसोम जो हैं वो आपस में सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जो हमारी ये फिश की टेक्निक है ये हमें ज्यादा हेल्पफुल रहती है डिलीशन और डुप्लीकेशन के टाइम पे। सिंस नॉर्मल कैरियोटाइप के टाइम पे हमें डिलीशन और डुप्लीकेशन का खास पता नहीं चलता। हम कन्वेंशनल मेथड जो आता है उसको हम कहते हैं बैंडिंग टेक्निक्स। वहां से हमें बैंड्स दिख जाते हैं लेकिन पूरी तरह हमें क्लियर नहीं हो पाता। अगर हमें ये देखना होगा कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो रहा है या डुप्लीकेट पार्ट हो रहा है तो हमने क्या करना होता है, क्रोमोसोम का पर्टिकुलर प्रोब्स हम यूज करते हैं। तो वो प्रोब्स क्या कर लेते हैं कि वो डिलीटेड क्रोमोसोम को डिटेक्ट करते हैं या वो उस क्रोमोसोम को डिटेक्ट करते हैं जिसमें डिलीशन या डुप्लीकेशन होती है और वहां पे वो बाइंड अप हो जाता है। तो वहां से हमें ये पता नहीं चलता कि कितना पार्ट बाइंड हुआ, ये डिलीट हुआ, लेकिन ये पता चल जाता है कि इस क्रोमोसोम में डिलीशन जो है वो हो रही होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो फिश की टेक्निक है इट कैन it can detect how many chromosomes of a certain type are present in each cell and to confirm rearrangement that are suspected after microscope analysis। इस पॉइंट का मतलब ये आया कि जो मैंने आपको कहा कि नॉर्मल कैरियोटाइपी से भी हमें पता चलता है, नॉर्मल जी बैंडिंग से भी हमें पता चलता है, लेकिन जहां पे हम उन दो टेक्निक से फेल हो जाते हैं उसके बाद हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। मींस ये टेक्निक जो है ये हाईली एडवांस्ड है। और सबसे पहले जो फिश टेक्निक थी इट वाज यूज्ड बाय द लीटेक इन 1991। सो देखो अगर आप देखेंगे ईयर इट इज 1991, यहां से हम देख सकते हैं कि कितनी रिसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, इससे पहले हमें इस चीज का पता नहीं था। देन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द फिश, जो फिश टेक्निक है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो मैंने आपको पहले ही एक चीज कहा, मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया प्रोब। प्रोब मैंने आपको पहले ही कहा इट इज ए केमिकली लेबल्ड डीएनए। लेकिन प्रोब जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मींस लोकस स्पेसिफिक या क्रोमोसोम स्पेसिफिक। दो चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, एक आता है क्रोमोसोम स्पेसिफिक, एक आता है लोकस स्पेसिफिक। क्रोमोसोम स्पेसिफिक मैंने आपको जैसे क्रोमोसोम नंबर 21 की एग्जांपल दी कि अगर हम 21 क्रोमोसोम का प्रोब ले लेंगे तो वो कहीं भी क्रोमोसोम नंबर 21 पे बाइंड करेगा। लेकिन फिर मैं साथ में वर्ड यूज कर रहा हूं लोकस स्पेसिफिक। लोकस स्पेसिफिक मींस कि आपने वाई क्रोमोसोम का नाम सुना होगा। मेल्स में दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई, और जो हमारी मेलनेस होती है उसको वाई क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है। और डिटरमाइन करने के लिए पूरा वाई क्रोमोसोम की जरूरत नहीं होती, एक जीन की जरूरत होती है और उस जीन को हम कहते हैं SRY जीन। और वो SRY जीन जो है वो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इतना पावरफुल जीन है कि अगर किसी इंडिविजुअल में एक साइड 10 एक्स क्रोमोसोम भी होंगे और एक साइड एक वाई क्रोमोसोम होगा या उस वाई क्रोमोसोम का सिर्फ उतना सा पार्ट जहां पे SRY होगा, तब भी वो इंडिविजुअल जो है हम उसको मेल ही कहेंगे, वो मेल ही होगा, इतना पावरफुल है। तो लोकस स्पेसिफिक प्रोब मतलब आया कि अगर मैंने डिटेक्ट करना है वाई क्रोमोसोम का उस SRY जीन तो मैं उसी का स्पेसिफिक प्रोब परचेज करूंगा और वो यूटिलाइज करूंगा। वो प्रोब क्या करेगा कि वाई क्रोमोसोम पे वही बाइंड होगा जहां पे SRY जो है उसकी लोकेशन होती है। सो बेसिक प्रिंसिपल हम ये कहेंगे कि द बेसिक एलिमेंट ऑफ फिश आर डीएनए प्रोब्स। ठीक है, प्रोब का सिंपली एक डेफिनेशन याद रखना, केमिकली लेबल्ड डीएनए। केमिकली मींस कि जब हम उसके साथ किसी भी केमिकल को लेबल करते हैं उसको, लेकिन पर्टिकुलरली रेडियो एक्टिव या कोई और सेकंड इज द टारगेट सीक्वेंस, कि कौन टारगेट सीक्वेंस, जब मैंने एग्जांपल दी कि अगर डाउन सिंड्रोम आप स्टडी कर रहे हो तो आप 21st क्रोमोसोम का प्रोब ले लेंगे। अगर आपने सेक्स मेलनेस के लिए हमने देखना होगा तो हम SRY जीन का प्रोब ले लेंगे। और दूसरी चीज,
बिफोर हाइब्रिडाइजेशन द डीएनए प्रोब इज लेबल्ड। अब ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा कि डीएनए प्रोब इज लेबल्ड, ये जिस टाइम ये स्टार्ट हुई थी उस टाइम हमें ये सब कुछ खुद करना पड़ता था, मतलब उसकी लेबलिंग वगैरह, और बड़ा टाइम ले लेता था। लेकिन आजकल हमारे पास ऑलरेडी लेबल्ड डीएनए आता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना होता है, हमने सिंपली एक प्रोब परचेज करना है। इवन आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने किस क्रोमोसोम को स्टडी करने हैं या किस जीन को स्टडी करना है, आप उसी का प्रोब ले लेंगे और आपने वो प्रोब परचेज करना है। और जिस टाइम आप उसको किसी पर्टिकुलर स्लाइड जो आपने, क्योंकि ये याद रखना, फिश की स्टडी के लिए हमें स्लाइड की जरूरत पड़ती है जिसपे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आपने उसको उस स्लाइड के ऊपर डालना होता है। और वो फाइनली जो भी होगा, चाहे जीन लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो या आप उसको क्रोमोसोम लेवल पे स्टडी कर रहे हो, मींस या तो आप पूरा प्रोब ले लोगे, क्रोमोसोम मतलब होल प्रोब, या आप ले रहे हो लोकस स्पेसिफिक प्रोब। जो भी प्रोब आप ले रहे हैं वो अपना काम वहां पे कर देता है। देन बेसिक प्रिंसिपल अब क्या आया कि बेसिक एलिमेंट्स जो फिश के हैं वो डीएनए प्रोब और टारगेट सीक्वेंस है। लेबल्ड प्रोब एंड टारगेट सीक्वेंस आर डीनेचर्ड। जो आपने डीएनए मतलब इसमें ये डीनेचर का मतलब ये आया कि नॉर्मली प्रोब जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो टारगेट डीएनए हमारा है या क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है वो भी डबल स्ट्रैंडेड है। तो इस केस में हमने क्या कर, वो करता क्या है बेसिकली कि दोनों जो है वो डीनेचर होते हैं, मींस उनकी दो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद जो प्रोब होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए के साथ पेयर करता है और उसके साथ फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, तभी वो हमारे पास वो आ जाता है। फिर combining the denatured probe and target allows the annealing of complementary DNA sequence। जब डीएनए जो है वो हाफ स्ट्रैंड्स में डीनेचर हो गया, प्रोब भी हाफ स्ट्रैंड्स में डीनेचर हो गया, उसके बाद जो दोनों डीएनए, टारगेट डीएनए और लेबल्ड प्रोब जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन गए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है। उस बाइंडिंग को हम कहते हैं अनीलिंग। उस बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, अनीलिंग। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जब वो उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करेगा तो वहां पे पेयरिंग होती है, और पेयरिंग जो है वो कंप्लीमेंट्री होती है। कंप्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पे वही आता है कि जो एडेनिन है वो करता है थाइमीन के साथ पेयर, और जो गोनीन है वो करता है पेयर साइटोसिन के साथ। और जो पेयरिंग होते हैं तो वो आ जाती है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो आपने 12th क्लास में वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में पढ़ा होगा। देन उसके बाद फिर बेसिक प्रोटोकॉल क्या है इसका, फिश का मेन तो आपको पहले आपको चाहिए डीनेचुरेशन और हाइब्रिडाइजेशन। पहले इस फिश प्रोटोकॉल इज डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस। डे 1 पे डीनेचुरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक चीज अब ये याद रखना कि डीनेचुरेशन की और हाइब्रिडाइजेशन की अब हमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड इज द वॉशिंग एंड डिटेक्शन दैट इज परफॉर्म्ड अंडर 2 डेज। ये याद रखना कि ये जो 2 दिन में बोल रहा हूं, डे 1 और डे 2, ये उस ऑलरेडी जो आपने स्लाइड प्रिपेयर की है जिसमें आपको 3 दिन लगे थे उसके बाद वाले डेज। तो इक्विपमेंट्स इसमें हम क्या यूज करेंगे, इथेनॉल क्लीन स्लाइड्स, कवर स्लिप है, ट्यूब्स है, कपलिंग जार है, जो इसमें ये सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं। जब हमें केमिकल्स यूज करने होते हैं वो सोडियम क्लोराइड आता है, सोडियम स्ट्रेट आता है, पेप्सिन आ जाता है। वो सारा कुछ इसमें जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ये आपको मटेरियल मिल जाएगा। ये केमिकल्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। अब देख लीजिए मैंने ब्रीफ सा प्रोसीजर लिखा है जो आपको प्रिपेयर भी करना है, याद भी रखना। 37 डिग्री मतलब ये आ गया, जो सारा कुछ लिखा मैंने कि टेम्परेचर आपने 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। इसलिए वहां पे क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो सेल आपने लिया है वो आपने लिए हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल का पार्ट उसी में आपने क्रोमोसोम लिए, तो उनकी
उनके लिए, उस चीज के लिए हमें 37 डिग्री ही टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया तो वो उसको डीनेचर कर सकता है। डीनेचर मीन्स कि उसका स्ट्रक्चर को पूरी तरह चेंज कर सकता है। तो 37 जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है। सबसे पहले जब आप प्रोब खरीदते हैं तो प्रोब को हमने डीनेचर करना है 10 मिनट पे, और उसके लिए हम टेम्परेचर यूज करते हैं 65 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि जब आपने उसको 65 डिग्री पे रख दिया वो 10 मिनट तक, उसके बाद आप फिर उसको वापस 37 डिग्री पे लाएंगे, दैट इज 30 टू 60 मिनट्स। फिर सेकंड स्टेप इज प्रिपेयर न्यू स्लाइड्स विद फ्रेश मेटाफेस स्प्रेड which have been fixed with 3 point which is fixed with methanol acetic acid, जिसको आप commonly कहते हो फिक्सेटिव। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो स्लाइड्स होती हैं, अब मुझे इसका नहीं पता है कि आपने ये चीज पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो जिस टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने लिम्फोसाइट कल्चर से पहले स्लाइड प्रिपेयर की, जिस टाइम आप लिम्फोसाइट कल्चर से स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ में आपने प्रोब को भी रेडी करना है, जो सेकंड स्टेप है। और डिहाइड्रेट का मतलब ये आया कि स्लाइड जब आप प्रिपेयर करते हो तो स्टेन जब हमने उनको करना होता है तो ये वाला स्टेप हम फॉलो करते हैं कि उनको इथेनॉल की डिफरेंट ग्रेडिंग्स में वॉशिंग देते हैं फॉर सम टाइम, ताकि, और उसके बाद हम एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द जीटीजी बेंडिंग। फिर उसके बाद स्लाइड्स आ गई, अप्लाई प्रोब ऑन टू दिस स्लाइड, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने प्रोब लिया, स्लाइड्स प्रिपेयर की, जितना भी टाइम लगा प्रोब को उठा लिया, प्रोब को स्लाइड के ऊपर डाल दिया, और उसके ऊपर हम डाल देते हैं कवर स्लिप। अब ये प्रोब समझ लेना, ये सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये मेंशन करना है कि उस जो आपने कवर स्लिप डाली उसको पूरी तरह सील करना है, और उसके बाद इस स्लाइड को हम एयरटाइट करते हैं प्री वार्म्ड ह्यूमिडिफाइड चेंबर, और उसको हमने इंक्यूबेटर में डालना है 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका सिंपल प्रोसीजर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्लाइड्स आर, अच्छी तरह समझ लेना ये पॉइंट जो अब मैं कह रहा हूं, ये आपने याद रखना है, प्रोसीजर में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। पहली चीज, कलेक्ट द ब्लड 0.3 ml। सेकंड, प्रिपेयर द स्लाइड बाय लिम्फोसाइट कल्चर टेक्निक, ठीक है, याद रहे, नोट करते जाना। पहला मैं रिपीट करूंगा, पहला कलेक्ट द ब्लड 0.3 ml, इसमें हम सिरिंज वगैरह यूज करते हैं। सेकंड, प्रिपेयर द स्लाइड्स बाय लिम्फोसाइट कल्चर टेक्निक, सिंपल टेक्निक का नाम याद रख लीजिए, आपको आगे वो करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं होगा सेपरेट टॉपिक, वो सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। थर्ड, स्टेन स्लाइड जब प्रिपेयर हुई उसके बाद स्टेन द स्लाइड, और इसमें स्टेन जो हम यूज कर सकते हैं, कभी आपको वाइवा पूछ सकते हैं, वाइवा में स्टेन का नाम याद रखना, जिम्सा स्टेन होती है, GIEMSA, पर्पल कलर की स्टेन होती है, और क्रोमोसोम भी पर्पल कलर के हो जाते हैं। जब हमने स्टेन को स्लाइड किया, हम देखते हैं उधर क्रोमोसोम आया कि नहीं, पूरी तरह कंफर्म हो जाता है। फोर्थ स्टेप आ जाता है GTG बैंडिंग, ठीक है, जिम्सा ट्रिप्सिन बैंडिंग हम इसको कहते हैं। हमने स्लाइड्स को एक सॉल्यूशन में डालना होता है दैट कंटेन्स द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो हिस्टोन होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है कि उन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और वहां पे एक गैप जैसा बन जाता है, उस गैप को हम बैंड कहते हैं, तभी वर्ड बैंडिंग आया। तो वो एक लेटर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है। ब्लड कलेक्ट किया, स्लाइड्स प्रिपेयर की, स्लाइड्स को स्टेन किया, स्लाइड्स को बैंड किया, और फोर्थ स्टेप आपने, नेक्स्ट स्टेप आपने उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है कि आप उनमें सेल है, क्रोमोसोम अच्छी तरह है कि नहीं। फिर आ जाएगा कि जब आपने कंफर्म कर लिया हाँ स्लाइड मेरी अच्छी बनी है, क्योंकि इसके लिए हमें ये कंफर्म करना है स्लाइड जो है वो अच्छी बनी है, क्योंकि क्योंकि स्लाइड जो है वो अच्छी बननी चाहिए। वेरी सॉरी, थोड़ा सा। सो
जब आपने ये कंफर्म किया स्टेनिंग के बाद कि स्लाइड अच्छी बनी है, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, इनक्यूबेटर में हमने स्लाइड को रखना है थोड़ी देर के लिए, और वहीं पे हमने क्या करना है कि प्रोब लाएंगे। क्योंकि मैंने आप स्लाइड हमने क्यों कंफर्म करना है कि स्लाइड में क्रोमोसोम है, क्योंकि प्रोब जो है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम ये चीज करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोब को लाया, उसको स्लाइड के ऊपर हमने डाल दिया, और फिर जहां पे भी आप प्रोब डाल रहे हो उसके ऊपर हमने कवर स्लिप डालनी है। और वो कवर स्लिप जो है वो प्रॉपरली सील हो जाएगी। हम उसमें वो सीमेंटेड वैक्स वगैरह यूज कर लेते हैं, और फिर हमने उसको कोई काफी देर तक रखना होता है, मतलब बड़ी सारी देर तक हम उसको रखते हैं, कोई अबाउट 1 to 2 days, ताकि वो प्रोब जो है अपना जो उसका वो होता है जो उसने वहां पे करना है। देखो अब जब आपने प्रोब डाल दिया, मैं आपको शॉर्ट में कह रहा हूं कि वो प्रोब अगर आप 21 क्रोमोसोम का यूज कर रहे हो तो वो जाके 21 क्रोमोसोम के साथ ही बाइंड होगा। लेकिन उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होता है, वो आपने उतना नहीं जाना है। मतलब मैकेनिज्म में वही आ जाएगा कि डीनेचुरेशन वगैरह जो भी होती है। फिर जब आपने उसका प्रोब जो है स्लाइड पे डाल दिया, तो उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज आपने उस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। वो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं फिश एनालाइजर। उसमें आप क्या देखोगे कि जिस जगह पे प्रोब जो है क्रोमोसोम के साथ बाइंड करेगा, वहां पे कलर्ड या ब्लिंकिंग जैसी होती है, और जहां पे ब्लिंकिंग होगी वहां पे इमेज जो है वो पूरी तरह कैप्चर हो जाती है। और वहां पे आपको ये पता चलता था कि जो आपका पर्पस होता है, पर्पस मींस कि अगर आपने ये देखना है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन सा है वो भी आपको पता चल जाता है, डिलीशन पार्ट आपने देखना है वो भी आपको पता चल जाता है। और फाइनली हमारे पास अब ये कह सकते हैं कि आपने ये टेक्निक क्लियर कर ली कि हाँ ये प्रोसीजर है, आपने प्रोब भी यूज किया, आपने इमेज भी ले ली, आपको ये पता चल गया कि जो भी प्रोब आपने यूज किया था उसने अपना काम किया। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो फिश टेक्निक होती है इसकी एप्लीकेशन डिटेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल, जिसमें बार बार मैं आपको दे रहा हूं 21 क्रोमोसोम की ये एग्जांपल, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, अगर कोई पार्ट डिलीट हुआ, जैसे मैंने कहा कि सपोज कर लीजिए वाई क्रोमोसोम पे एसआरवाई जीन जो है वो डिलीट हुआ है, ठीक है, तो आप एसआरवाई जीन का क्रोमोसोम जी एसआरवाई का आप यूज करोगे प्रोब, तो अगर वो प्रोब किसी क्रोमोसोम पे बाइंड होगा तो मीन्स कि एसआरवाई जीन वहीं पे है, अगर नहीं बाइंड हुआ मीन्स एसआरवाई जीन वहां पे डिलीटेड है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्कर क्रोमोसोम, मार्कर क्रोमोसोम का मतलब यहाँ पे ये आया कि जिस भी चीज के लिए आप प्रोब यूज, जैसे डाउन सिंड्रोम के केस में 21 क्रोमोसोम जो वो मार्कर क्रोमोसोम है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिटेक्शन ऑफ जीन डिलीशन और जीन एम्प्लीफिकेशन, सो ये जो है दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ द फिश टेक्निक। तो हम कह सकते हैं कि इस फिश टेक्निक के बड़े सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो रैपिड टेक्निक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कैन बी स्कोर्ड इन ए शॉर्ट पीरियड। देखो रैपिड टेक्निक कैसे है, सिर्फ आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि नॉर्मली अगर आप कन्वेंशनल साइटोजेनेटिक्स यूज करेंगे जिसमें हम कैरियोटाइप प्रिपेयर करते हैं, कैरियोटाइप जब आप प्रिपेयर करते हैं बड़ा टाइम लगता है, मींस आपने क्रोमोसोम को सर्कल करना है, फिर आपने उन 46 क्रोमोसोम को सीजर के साथ काटना है, फिर आपने ग्लू यूज करना है उनको पेस्ट करने के लिए, वो टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सीधा स्लाइड प्रिपेयर की, प्रोब को लाया, स्लाइड के ऊपर डाल दिया, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के ऊपर बाइंड कर देता है, आपको कंफर्म हो जाता है कि इस पर्सन में प्रॉब्लम है या नहीं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज रैपिड टेक्निक एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कैन बी स्कोर्ड इन ए शॉर्ट पीरियड। सेकंड एडवांटेज इज एफिशिएंसी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड डिलीशन इज हाई, जो नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निक से हमें पता नहीं चलती। थर्ड, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इज हाई। स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पे आया कि जिस भी क्रोमोसोम का आप प्रोब यूज करोगे वो उसी पे बाइंड करेगा, कभी भी दूसरे उस पे बाइंड नहीं करेगा।
साइटोजेनेटिक डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन डिवाइडिंग और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है। कभी कभी क्या होगा ये भी एक नई स्टडी है कि अगर सपोज कर लीजिए, ये अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ बच्चों की माइक जो है वो ऑन है, उसको म्यूट कर लीजिए। विकास शर्मा, आपकी माइक आप अपनी वो म्यूट कर लीजिए। साइटोजेनेटिक डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन डिवाइडिंग और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल। इस पॉइंट को बड़ा एक इंपॉर्टेंट याद रखना। ये स्टडी हमें तब हेल्प होती है कि जब सेल जो है आपको क्रोमोसोम भी प्रॉपरली सेल ने डिवाइड नहीं किया होता है, लेकिन क्रोमोसोम उसके अंदर होते हैं। हमारे पास इस टाइम कुछ प्रोब्स इतने एफिशिएंट होते हैं कि अगर क्रोमोसोम पूरे 46 के 40 क्रोमोसोम में ओवरलैपिंग है, मींस आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कौन सा क्रोमोसोम कौन सा है, लेकिन तब भी फिश टेक्निक में जो हम प्रोब यूज कर सकते हैं वो जाएगा और एक पर्टिकुलर सेल के पॉइंट पे बाइंड होकर आपको ये इन्फॉर्म करेगा हाँ इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या नहीं है। इसको हम कहते हैं कि फ्रॉम नॉन डिवाइडिंग सेल। सेकेंड, साइटोजेनेटिक डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पुअर सैंपल। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर हमारे नॉर्मल, अगर हमारे पास जैसे सेल, अगर आप स्लाइड प्रिपेयर कर ली, अगर हमारे पास तो नॉर्मल जो आप कैरियोटाइप प्रिपेयर करते हो हमारे पास काफी सेल्स होने चाहिए, तब हम पूरा वो एक रिजल्ट देते हैं। अगर कभी एक ही या दो सेल होंगे तो वहां पे भी फिश टेक्निक जो है इट इज हाईली एप्लीकेबल एंड मेथड हैज बीन एडॉप्टेड फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम। वही आया जो मैनुअल हम करते थे पहले, उसके लिए हम कैरियोटाइप बनाते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। Restricted to those abnormalities that can be detected with currently available probes। मतलब सारी डिजीजेस या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का प्रोब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है आप उनको ही यूज कर सकते हैं। अरे किसका माइक ऑन है? बार बार आप लोगों से बोला जा रहा है माइक ऑन नहीं करिए। Second, only one or few abnormalities can be assessed simultaneously। मीन्स इसका यह है कि कभी क्या हो जाता है कि अगर किसी पर्सन में एक या दो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी तो एट ए टाइम सिर्फ आप एक या दो ही प्रोब यूज कर सकते हैं, उसमें ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक, ड्यू टू फेलियर टू डिटेक्ट सिग्नल। कभी ये भी होता है कि कभी इस केस में क्या होगा कि ठीक है कि ज्यादा सक्सेस जो हमें आज तक फिश टेक्निक से मिली वो ट्राइसोमीज के केस में ही मिली। ट्राइसोमीज में क्या होता है कि नॉर्मली हर एक पेयर पे दो ही क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन कभी कभी एक पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। तो उस केस में हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन जो लॉस या डिलीशन वगैरह होती है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, वहां पे अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कि एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। और लास्ट लिमिटेशन ये है कि रिक्वायर्स फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप एंड इमेज एनालिसिस सिस्टम। रिक्वायर्स मतलब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमें ये अवेलेबल नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा कि अवेलेबल हमारे पास सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली है। इवन मैं बोलूंगा कि जब मैंने अपने टाइम पे ये टेक्निक यूज की थी, जो माइक्रोस्कोप थी वो 25 lakhs की आई थी, और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ था, और सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए इट रिक्वायर्स 2 लाख, जो आज तक नहीं हमने ठीक किए। तो फिर इसी तरह जो मैंने आपको कहा कि जब आपने किसी भी डिजीज का प्रोब लेना है वो भी अप टू 2 lakhs जाता है, और ज्यादा आप 5 या 10 पेशेंट को स्टडी कर सकते हो। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवांस टेक्निक है, हेल्पफुल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है। ठीक है, सो यहां तक ये आता है फिश का। तो फिश में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स, ताकि मैं नेक्स्ट टेक्निक पे आ जाऊं।
फिश में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। शाबाश। सर हाँ, तेज तेज आप तेज कह रहे तेज। हैं जैसे हम कैसे जानेंगे कि उसी का प्रूफ लेना है। हाँ, वो सर जैसे कि हम कैसे जानेंगे कि उसी का प्रूफ लेना है। वो देखो, जहां से आप परचेज करें, जो बड़ी सारी हमारे पास कंपनीज होती है ऑलरेडी उन्होंने जैसे आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम सुना है आपने? ऑलरेडी नहीं सर। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या है कि हर एक क्रोमोसोम को हमने डिकोड किया हुआ है। तो हर एक क्रोमोसोम का हमारे पास इस टाइम प्रोब अवेलेबल तो नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक, जैसे सपोज कर लीजिए 21 क्रोमोसोम का प्रोब है हमारे पास, एक्स क्रोमोसोम का प्रोब है, वाई क्रोमोसोम का प्रोब है, 13 क्रोमोसोम का प्रोब है, 18 क्रोमोसोम का प्रोब है, वो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो जहां से हमने प्रोब परचेज करना है वो आपको बोल देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का प्रोब है। तभी मैंने आपको दो टर्म्स यूज की थी, एक क्रोमोसोम स्पेसिफिक प्रोब, एक लोकस स्पेसिफिक प्रोब। क्रोमोसोम स्पेसिफिक मींस कि आप प्रोब ले लेंगे 21 क्रोमोसोम का, वो 21 के क्रोमोसोम पे कहीं पे भी बाइंड हो सकता है। फिर आ गया लोकस स्पेसिफिक। लोकस स्पेसिफिक में मैंने आपको ये कहा कि आप वाई क्रोमोसोम का प्रोब ले लेंगे, लेकिन वो सिर्फ एसआरवाई जीन पे ही बाइंड कर सकता है। तो इस केस में हमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है कि ये इस क्रोमोसोम का प्रोब है। ठीक है सर। जैसे शाबाश। कि और जैसे कोई? सर कहने में ये टेक्निक आसान है, बट आसान नहीं है, इट टेक्स ए टाइम। लिंक नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम ही अकेली हो क्या? एक हफ्ता से शाबाश। तुम्हें एनी आया, अदर 7 क्वेश्चन? में तुम्हें लिंक नहीं आया है। सर स्ट्रक्चरल का जो बताए थे डिलेशन, वही लिंक है सर डिलेशन यही वही बता एक ही दीजिए लिंक चल तो। रहा है, 10 दिन चलेगा। डिलीशन का मैंने ये कहा था कि नॉर्मली किसी क्रोमोसोम का पार्ट अगर लॉस हो गया उसको हम कहते हैं डिलीशन। अब जैसे सपोज करो वाई क्रोमोसोम है, अगर वाई क्रोमोसोम का पार्ट जो है कोई डिलीट हो गया, सपोज करो उसका एसआरवाई जीन जो है डिलीट हो गया, लेकिन नॉर्मल क्रोमोसोम स्टडी जो हम करते हैं वहां से हमें ये नहीं पता चलेगा कि पार्ट डिलीट हुआ कि नहीं। हम क्या करेंगे, जस्ट क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल, ये याद रखना कि जो ये टॉपिक है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है ये टॉपिक्स। लेकिन उस केस में हमने क्या करा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया जिस टाइम मैं रिसर्च कर रहा था, तो वो मेल था, ठीक है, मेल था, मतलब मॉर्फोलॉजिकली मेल था, लेकिन जब हमने उसकी क्रोमोसोम स्टडी की उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम आए। क्या क्रोमोसोम स्टडी आई? एक्स Yes, एक्स sir. क्रोमोसोम से। लेकिन अब हमने ये डिटेक्ट करना कि अगर इसमें एक्स क्रोमोसोम है तब भी मेल है, तो उससे ये कंफर्म, एक आइडिया तो ये हमें लग गया कि इसके जो दूसरा एक्स जो आ रहा है वहां पे मेल जीन आया होगा, तभी इसमें मेल के भी कैरेक्टर है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा एसआरवाई जीन जो है बड़ा पावरफुल जीन है। तो उन केसेस में हम क्या कर लेते हैं कि लोकस स्पेसिफिक प्रोब ले लेते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया, एम्स में ये स्टडी हमने की थी कि वहां पे हमने क्या किया कि हमने एसआरवाई जीन का प्रोब ले लिया, और उस जो वो पेशेंट था, तो उसकी स्लाइड पे जब हमने वो प्रोब लिया तो वो एस आर जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बाइंड हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि उसमें एस आर वाई जीन जो है वो ट्रांसलोकेट हुआ है, तभी उसमें वो मेल कैरेक्टर्स आए थे। तो उस डिलीशन के केस में हमें ये ऐसे भी हेल्प कर लेता है। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन, टोटल 1, ताकि हम नेक्स्ट के लिए मूव करेंगे। सर कैसे जानेंगे कि यही प्रूफ यूज करें हम? मतलब उसमें आपको एक, दिस इज द आइडिया बेस्ड। जैसे मैंने अभी इनको एक एग्जांपल दी, प्रीति यादव, इसने जो क्वेश्चन पूछा था इसको मैंने एक अभी एग्जांपल दी थी कि जब वो पेशेंट हमने स्टडी किया तो उसमें हमने पहले कैरियोटाइप स्टडी की, उसमें एक्स एक्स आया, लेकिन उसमें मेल कैरेक्टर्स थे। क्या थे? मेल कैरेक्टर्स भी थे। मींस उसमें अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें टेस्टीज थी, उसमें पेनिस था, उसमें बाकी चीजें भी थी जो मेल के कैरेक्टर होते हैं। लेकिन हमने ये कंफर्म करा था कि क्रोमोसोम उसका एक्स एक्स क्यों आ रहा है। तो उस केस में हमें एक आइडिया लगता है कि हम क्यों ना इस पर्टिकुलर जीन का प्रोब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए
कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर मेल के कैरेक्टर आए तो इट मींस आप में वाई क्रोमोसोम है। अगर वहां पे आप वाई क्रोमोसोम नहीं आया, इट मींस कि पूरा वाई क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन वाई क्रोमोसोम में जो मेलनेस के लिए जीन है, SRY जीन, वो उसमें आया है। तो इसलिए हमें वहां से एक आइडिया लग जाता है और हम पर्टिकुलर प्रोब ही वहां से ले आते हैं। समझ आया कुछ क्या बोला मैंने? ठीक है, अब नेक्स्ट हम Yes, sir, yes, sir, बिल्कुल। नेक्स्ट के लिए हम मूव करेंगे। सर हाँ जी बेटा। जो प्रोड्यूसर का जो प्रोसीजर बताए थे सैंपल करने के लिए, हाँ उसका जो बताए थे GTP जिम्सा ट्रिप्सिन, हाँ हाँ उसके बाद से बता दीजिए। हाँ, देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सिंपल फास्ट पार्ट। पहले आपने ब्लड कलेक्ट करना है। यस ब्लड करने के बाद हमने लिम्फोसाइट कल्चर करना है स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हमने उसको स्टेन करना है ताकि हम कंफर्म करें क्रोमोसोम है उसमें कि नहीं। फिर GTG बैंडिंग, जिम्सा ट्रिप्सिन, जी बैंड्स हम उनको कहते हैं, वो स्टडी करना। और उसके बाद हमने स्लाइड के ऊपर प्रोब डालना होता है, जो प्रोब हमें सोल्यूशन फॉर्म में आता है। और प्रोब जब हमने एक ड्रॉप डाल दिया, उसके ऊपर हम कवर स्लिप डाल देते हैं, तो वो प्रोब जो है सोल्यूशन फॉर्म में वो पूरी तरह स्प्रेड हो जाता है। और जिस भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम या लोकस का प्रोब होगा वो वहां पे बाइंड हो जाता है आफ्टर सम टाइम। ये सिंपल प्रोसीजर है इसका। और उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो प्रोब जहां बाइंड होता है वहां पे हमें डॉट सा दिखता है। मतलब हमें दिखेगा कि क्रोमोसोम के ऊपर एक डॉट डॉट जैसा है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या जो भी क्रोमोसोम हम स्टडी कर रहे थे ये वो वाला है। ओके सर। ठीक है, हम मूव करें नेक्स्ट के लिए फिर। यस सर। आए सर। ओके, देन नेक्स्ट टेक्निक जो है दैट इज गिश। पहली फिश थी, नेक्स्ट इज द गिश। ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है। गिश मींस जीनोमिक in situ hybridization. Genomic in situ hybridization. It is a cytogenetic technique that allows one to radiolabel parts of genome within the cell. It was mainly developed for the animal hybrid cell lines in 1986. ठीक है, it is quick, sensitive, accurate, informative, and a comparative approach rather than the absolute one. देखो, इस पॉइंट का मतलब ये आया कि इसमें भी हमने रेडियोलेबल पार्ट ही, इसमें भी हमने एक पर्टिकुलर प्रोब वगैरह ही यूज करेंगे जो फ्लोरेसेंट प्रोब होगा। लेकिन यहां पे आप जनरली एक सेल ले रहे हो, और सेल इसमें क्या होगा कि जो भी प्रोब आपका मेन होगा वो उस पर्टिकुलर सेल पे बाइंड करेगा। देखो इधर, गिश टेक्निक इज एन एडवांसमेंट इन फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इसमें प्रिंसिपल क्या है? द टेक्निक इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन and subsequently radio labeling of whole DNA of one organism and to use a probe to target the genome of another organism. The part of genome that are sufficiently similar to the probe hybridize to form a probe target complex, which is now labeled. The remaining unhybridized part of the genome can be further stained to view them. This is the basic principle of the जीनोम। अगर आप इस डायग्राम को यहाँ पे देख लेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम ब्लड कलेक्ट करेंगे, उसी से हमने डीएनए को आइसोलेट करना है। तो जब हमने डीएनए को आइसोलेट करना है, यहाँ पे हम डीएनए लेवल तक जा रहे हैं, तो डीएनए को आइसोलेट करने के बाद जो प्रोब हम यहाँ पे यूज करेंगे, रेडियो लेबल्ड प्रोब जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या करेगा, वो डीएनए के पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड हो जाएगा। डीएनए के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड हो जाएगा जहां पे कोई ना कोई ये एबनॉर्मलिटी जैसी होगी या कोई ना कोई जो चीज होगा। इधर देख लीजिए आप इस स्लाइड को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबलिंग ऑफ द प्रोब, ब्लॉकिंग डीएनए फ्रेगमेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोब, and blocking DNA in hybridization mixture
addition of probe and blocking DNA with hybridization mixture, chromosome DNA denaturation, hybridization of DNA and probe in target sequence of chromosome, detection of probe in the chromosome of one parent, chromosome DNA molecule of second parent related to unlabeled blocking DNA, visualization of the hybridization signal in fluorescent microscope, unlabeled chromosome are visualized with counter stain. अब देख लीजिए दोनों में डिफरेंस कहां पे है। अगर देखा जाए तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो है वो सेम है। नॉर्मली इसमें भी हमने क्या करना है कि स्लाइड को आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। स्लाइड को आपने जब प्रिपेयर किया तो उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोब जो हमने लिया वो प्रोब उस क्रोमोसोम मतलब जिस भी आप क्रोमोसोम का प्रोब ले रहे हो वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर बाइंड कर देता है। लेकिन यहां पे आपने क्या याद रखना है कि वहां पे मैंने आपको ये कहा था कि जो प्रोब आप यूज कर रहे हो वो क्रोमोसोम स्पेसिफिक प्रोब है या लोकस स्पेसिफिक प्रोब है। लेकिन जो प्रोब आप यहां पे यूज कर रहे हो दैट इज पर्टिकुलरली सीक्वेंस स्पेसिफिक या डीएनए स्पेसिफिक। मींस कि आपने स्लाइड बनाई, आपने एक प्रोब ले लिया, वो प्रोब जो है आपने उस स्लाइड के ऊपर डाल दिया और वो जो है अगर डीएनए अगर यहाँ पे कोई भी उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर कोई भी चेंज हुई होगी, मींस स्ट्रक्चरल चेंज जो हम कहते हैं, ठीक है, वहां पे हम न्यूमेरिकल यूज करते थे। यहाँ पे ये चीज ये टेक्निक जो है ज्यादातर हम ये करेंगे जहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चरल चेंजेस, मीन छोटी सी डिलीशन होगी या ज्यादा होगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो आप प्रोब यूज करोगे वो उस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है अगर उसमें कोई सीक्वेंस जो है वो चेंज हुए डिलीट है वो वहां पे जाके बाइंड कर देगा, तो वो वहां पे ब्लिंक जैसा कर लेता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। नॉर्मल अब इसका और उसमें डिफरेंस क्या है कि मैं वहां पे हमने देखा था कि वहां पे एक लिमिटेशन थी कि अगर एक से ज्यादा डिजीज जो है वो वहां पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने प्रोब यूज किया, प्रोब ने बाइंड किया, ठीक है, अब अगर एक से ज्यादा क्रोमोसोम के ऊपर जो है प्रॉब्लम होगी तो ये वाला प्रोब जो है उतने ही क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो बाइंड करेगा। सो प्रोसीजर इसमें सेम आएगा। पहले प्रोब लेबलिंग, मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले हमें खुद करना पड़ता था, अब हमारे पास रेडीमेडली लेबल्ड प्रोब आ जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्लॉकिंग डीएनए जो ऑलरेडी नॉर्मल प्रोसेस है, डीनेचुरेशन ऑफ ब्लॉकिंग डीएनए, स्लाइड प्रिपरेशन हमारे पास आ जाती है, बी के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है। स्लाइड की प्रिपरेशन जब हुई तो मींस जो आपके ये क्रोमोसोम्स आए इनके अंदर ही डीएनए है, आपने इसके ऊपर प्रोब डाल दिया। प्रोब क्या कर, प्रोब जो होता है वो सोल्यूशन फॉर्म में होता है, सोल्यूशन फॉर्म में एक डीनेचुरेशन सोल्यूशन होता है। तो वो क्या करेगा कि स्लाइड के ऊपर जो क्रोमोसोम के डीएनए हैं उनको भी डीनेचर करेगा और प्रोब जो है वो भी खुद डीनेचर फॉर्म हो जाएगा। तो फाइनली एक स्ट्रैंड के साथ वो कंबाइन हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा कि वो प्रोब जिसके लिए भी आपने यूज किया है तो वो उसके साथ बाइंड अप हो जाएगा। फाइनली उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं। फिर अब इस केस में क्या होगा कि 46 क्रोमोसोम है, जिस भी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगी, जिस भी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगी वहां पे ये प्रोब जो है वो बाइंड करेगा और वो चीज हमें विजिबल होगी अंडर द माइक्रोस्कोप। वहां पे हम, मैंने कहा था वहां लिमिटेशन है एक या दो क्रोमोसोम, यहाँ पे इट कैन कवर ऑलमोस्ट ऑल द क्रोमोसोम। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिश एंड द गिश। फिर आप एप्लीकेशन में आ जाइए कि द मेजर एप्लीकेशन ऑफ गिश टेक्निक आर एज फॉलोज। मियोटिक स्टडीज में हमें ये हेल्प कर लेता है। डिटर्मिनेशन, मियोटिक स्टडीज में आप देखो कैसे हेल्प करते हैं। आपने मियोसिस पढ़ी होगी, आपने
मियोसिस में हम पढ़ लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर मतलब जैसे सपोज कर लीजिए एक टर्म आती है नॉन डिसजंक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे सपोज कर लीजिए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स क्रोमोसोम जो होते हैं, पूरे 23 पेयर जो है एनाफेज स्टेज पे 23 एक साइड पे चले जाते हैं और 23 दूसरी साइड पे चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के केस में कि कोई एक क्रोमोसोम पेयर जो है वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है, दोनों एक ही साइड पे चले जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि एक सेल के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, एक के पास कम क्रोमोसोम आता है। तो उस स्टेज पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मीन अगर हम मियोसिस जब हम पढ़ते हैं गोनेट्स वगैरह सेल्स में, जब हम स्लाइड्स देखते हैं, आपने देखी होंगी वो फिश इसमें इसमें जो है ग्रासपर की ओवरीज वगैरह में या बाकी किसी में, जब भी हम मियोटिक स्लाइड्स यूज करते हैं तो हमने डायरेक्टली ये प्रोब लेनी है, किस टेक्निक को यूज करते हैं, वो उस सेल के ऊपर बाइंड हो जाएंगी जहां पे एक्स्ट्रा या कम क्रोमोसोम आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मियोटिक स्टडीज में हेल्प करेंगी। लेकिन तब जब कहीं नॉन डिसजंक्शन होगी, अगर नॉर्मल चल रही है तो वहां पे इट इज एज यूजुअल, वो फायदा हमें कुछ नहीं। सेकंड इज कि इट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ब्रेक पॉइंट। ट्रांसलोकेशन ब्रेक पॉइंट में आ गया, वहां पे ये चीज नहीं, वहां पे हमने कहा था कि डिलीशन में ही हेल्प कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ब्रेक पॉइंट क्या आ गया कि दो क्रोमोसोम के बीच में जो पॉइंट एक्सचेंज हो रहा है, जो सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ये उन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो है बाइंड करेगा। देन अननोन जीनोम आइडेंटिफिकेशन। अननोन जीनोम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि कभी कभी में एक टर्म आई, बार बार यहाँ पे एक टर्म आई हाइब्रिडाइज सेल, जैसे एक टर्म आती है उसको हम कहते हैं सोमेटिक सेल फ्यूजन, जो हम कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, हम ये चीज पढ़ते हैं कि अगर समहाउ दो क्रोमोसोम्स फ्यूज हो गए, ठीक है, दो क्रोमोसोम जो है फ्यूज हो रहे, अब वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, या दो किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के सेल जो है फ्यूज हो रहे हैं और आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेल किसका है। ठीक है ना, सपोज कर लो मैंने एक ह्यूमन सेल ले लिया, एक मैंने रैबिट का सेल ले लिया, और उनको मैंने इंड्यूस किया कि वो दोनों फ्यूज हो जाए, हाइब्रिड सेल बन गया। अब मुझे जो हाइब्रिड सेल बना उसमें मैंने देखना है कि ह्यूमन सेल का पार्ट कौन सा है और रैबिट सेल का पार्ट कौन सा है। तो वहां पे ये गिश टेक्निक जो है वो यूज होगी, क्योंकि प्रोब आप यहाँ पे यूज करोगे तो आप किसी भी ह्यूमन सेल का प्रोब पर्टिकुलर ले लीजिए, वो ह्यूमन सेल पे ही बाइंड करेगा और आइडेंटिफाई कर देता है कि ये ह्यूमन सेल है या रैबिट का सेल है। तो आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइज्ड जीनोम ऑफ क्रॉप वैरायटीज, ये वही आया जैसे क्रॉप में जब हम हाइब्रिडाइज करते हैं, ताकि जब हम क्रॉप के केस में सपोज आपने एक क्रॉप ली ब्रेसिका, दूसरे आप ले रहे हो कुछ और, मतलब आप कैबेज एक ले रहे हो, आप टर्निप ले रहे हो, आप टर्निप और कैबेज को क्रॉस कर रहे हो, तो आगे आपके पास जो हाइब्रिड आ जाता है। मींस अब आपने ये डिटेक्ट करना है कि कौन सा हाइब्रिड के क्रोमोसोम्स हैं या कौन सा जीनोम हाइब्रिड का है और कौन सा जीनोम कैबेज का है और कौन सा जीनोम जो है वो उसका है दिस रेडिश का। तो वहां पे आप पर्टिकुलर उनके प्रोब्स यूज कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स जो हैं उनके बाइंड हो जाएंगे और उस पे हमें ये डिटेक्ट हो जाता है कि किसका क्रोमोसोम है या किसका नहीं है। ठीक है, इस स्लाइड को देख लीजिए, तो अगर किसी को गिश के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, डिस्कशन से ज्यादा क्लियर रहता है। अब जो रिसेंट रिसर्च हो रही है वही शाबाश, गिश पे किसी को जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। सर प्रोब में क्या जो जोड़े वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या वही प्रोब होते हैं? हाँ एग्जैक्टली। और
मतलब उसमें मैंने आपको पहले कहा प्रोब जो है वो स्पेसिफिक होगा। जी सर। प्रोब जो है वो स्पेसिफिक होगा, वो पर्टिकुलर उसी पे वो बाइंड कर देता है। जी सर, थैंक यू सर। और शाबाश कोई इसमें हाँ SRY जो है इसका सर फुल फॉर्म क्या है? उसका है सेक्स डिटरमाइंड रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। सेक्स सर एक बार डिटरमाइंड रीजन ऑन वाई, सेक्स डिटरमाइंड रीजन SEX सेक्स डिटरमाइंड रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ऑन वाई, थैंक यू सर। हाँ, ऑन वाई क्रोमोसोम। शाबाश। और कोई? हाँ जी सर, हम आपको भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, तीनों पे कर दीजिए आप। हाँ, पहले आप बना लीजिए, पहले आईडी बना लीजिए। एनी क्वेश्चन? हाँ, हम भेज रहे हैं तीनों। अब दोनों में एक चीज ये डिफरेंस याद रखना कि फिश और गिश में, फिश में हम जो फिश टेक्निक होती है पर्टिकुलर जीन को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन गिश में अब पहले आया जीनोम। तो ये मतलब अगर सपोज कर लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा फिश में SRY जीन डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन गिश में वो प्रॉब्लम आ जाती है, एग्जैक्ट जो है सिंगल स्पेसिफिक म्यूटेशन को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये याद रखना आप लोग। और बोले शाबाश। और दूसरा एक चीज और याद रखना कि गिश जो है वो ज्यादातर हम हाइब्रिड के केस में ही यूज करते हैं। देखो मैंने हर बार वर्ड जीनोमिक क्यों है उसके साथ, क्योंकि मैं सपोज करो हमारे पास एक A इंडिविजुअल है और दूसरा B इंडिविजुअल है, आपने और A और B को हमने इंड्यूस किया और उन्होंने एक C इंडिविजुअल बनाया, लेकिन C में अब क्या है, A के भी क्रोमोसोम्स आए और B के भी क्रोमोसोम, जीनोम आया। जीनोम मींस हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन। तो इस केस में जो हम प्रोब यूज करेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा C में कि A का कौन सा है, B का कौन सा है। लेकिन फिश में हम क्या करें, जैसे इसको अगर मैं फिश पे प्रोब यूज करूंगा, वो उस सी में भी पर्टिकुलर किसी चीज का वो जीन जो है आइडेंटिफाई करेगा। वो चीज वो जो है गिश वाले प्रोब वो उतना नहीं करेंगे, वो स्पेसिफिक उतने नहीं है। तो इसमें दो चीज याद रखना कि गिश जो है इट जनरली अलाउज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द जीनोम एंड क्रोमोसोम ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स एंड रिकम्बिनेंट ब्रीडिंग लाइन्स, जो मोस्टली हम इसमें देखते हैं। एंड सेकेंड, it helps in assessing phylogenetic relationship between different species of the plants जो हम यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें उतना वो कोई नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फिश जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक है एज कंपेयर टू द गिश। शैल वी मूव? हाँ जी सर। जो भी होगा क्वेरी आप बाद में भी पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट टेक्निक जो है दैट इज द फ्लो साइटोमेट्री, जो प्योरली साइटोलॉजी के पे बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेसिकली ए टेक्निक व्हिच इज यूज्ड इन द केमिस्ट्री आल्सो। तो अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे स्लाइड में शो कर रहा हूं। इट इज ए टेक्निक which is used to detect and measure physical and chemical characteristics of a population of cell or particles. A sample containing cells or particles is suspended in a fluid and injected into the flow cytometer instrument. The sample is focused to ideally flow one cell at a time through a laser beam, and light scattered is characteristic to the cell and their component. Cells are often labeled with fluorescent markers so that light is first absorbed and then emitted in a band of wavelength.
मेन स्ट्रेस आप इस पॉइंट पे डाल दीजिए, ए फ्लो साइटोमेट्री analyzer is an instrument that provide quantifiable data from a sample. Other instruments using flow cytometry include cell sorters, which physically separate and thereby purify cells of interest based on their optical properties. ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इसमें दे दूंगा कि क्या होता है। देख लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए अब फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है, अच्छी तरह समझ लेना, लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लगी होगी लेकिन आप इसको अपनी वे में लिखेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट जो हम इसमें यूज करते हैं उसको हम कॉमनली कहते हैं फैक्स, FACS, फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर एनालिसिस। फ्लो साइटोमेट्री में हम क्या करते हैं, फैक्स लिख के रखना, FACS, फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर एनालिसिस। ठीक है, आप लोगों ने ये लिखा होगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो हमने सीमन ले लिया। ठीक है, सीमन में हमें पता होता है कि उसमें स्पर्म्स है, और स्पर्म्स का आपको पता है कि अबाउट कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होता है, राइट। हमने अब क्या करना है कि हमने ये पता करना है कि किस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और किस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है। इसको डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो साइटोमेट्री, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो साइटोमेट्री और सेल सॉर्टर एनालिसिस, और सेल सॉर्टर एनालिसिस। इस केस में हमने क्या करना होता है, सिंपल प्रोसीजर याद रखना कि सबसे पहले हमने सीमन को कलेक्ट करना। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं एग्जाम में जब आ जाएगी। हमने सिंपल एक वो सीमन कलेक्ट करना है और उसको हमने किसी पेट्री डिश में डालना है। ठीक, पेट्री डिश में जब हम डालेंगे तो हम एक डाई यूज करते हैं। वो डाई हम जब यूज करेंगे तो मतलब जब हमने इंस्ट्रूमेंट जो फ्लो साइटोमेट्री एनालिसिस जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमने उसमें डाल दिया, ठीक है, उसमें एक ट्रे जैसी होती है, तो वहां पे हम एक डाई भी यूज करते हैं। उस डाई को हम कहते हैं होशिट, HOECSHT, होशिट जो होती है एक डाई यूज करते हैं। वो क्या करेगा कि जो स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ज्यादा इंटेंसली स्टेन करेगा, क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो लार्जर साइज का है एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम, और जो स्पर्म्स कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम होते हैं उनको लेस स्टेन करेगा। दोनों में अब ये लेस और ज्यादा स्टेन करता है, ये डिपेंड करता है, इंटेंसिटी जो होती है स्टेन की वो डिपेंड करती है एक तो क्रोमोसोम के साइज पे और क्रोमोसोम का मॉलिक्यूलर वेट। तो सिंस मैंने आपको पहले ही कहा कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम, तो एज ए रिजल्ट जो स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम है वो ज्यादा डार्क स्टेन हो जाती है और जो वाई क्रोमोसोम है वो लाइटली स्टेन होती है। फिर नेक्स्ट उसमें क्या हो जाता है कि जब ये चीज हो गई, वो इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, तो वहां पे आप क्या करेंगे, उसी इंस्ट्रूमेंट में एक डिटेक्टर होता है, वो क्या कर लेता है कि जो स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको सेपरेट कर देता है और स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता है। सेपरेशन किस बेस पे हो गई, ऑन द बाय यूजिंग पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट डाई जो हमने यूज किए, क्योंकि उसने कुछ पार्ट को इंटेंसली स्टेन किया, कुछ को इंटेंसली स्टेन नहीं किया। फिर सेल सॉर्टर एनालिसिस जो है वो उन डिफरेंशिएट करता है और एक सेपरेट दूसरा सेपरेट, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो साइटोमेट्री, और बाद में हम उनको जो है वो कलेक्ट करते हैं जो लेस स्टेन होते हैं विच इज द वाई क्रोमोसोम्स कंटेनिंग स्पर्म, जो डार्कली स्टेन होते हैं विच इज द एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म। एज ए रिजल्ट जो है हम फ्लो साइटोमेट्री को यूटिलाइज करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं इट इज पॉपुलर सेल बायोलॉजी टेक्निक दैट यूटिलाइज द लेजर बेस्ड
टेक्नोलॉजी टू काउंट, सॉर्ट और प्रोफाइल सेल इन हेटेरोजेनस फ्लूइड मिक्सचर, जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी इसमें इसकी सीमन की। फिर जहां पे मैं लिख रहा हूँ फ्लोरोक्रोम, फ्लोरोक्रोम वही आया कि जो डाई हमने यूज की, होशित याद रखना HOECSHT डाई हम यूज करते हैं ज्यादातर, जो उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। फ्लो साइटोमेट्री, फ्लो साइटोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन है शाबाश पूछ लीजिए। सर पेट्री डिश क्या होता है? पेट्री डिश जैसे अगर मतलब लैब में अगर जाओगे आप तो गिलास की एक वायल जैसी होती है, घर में आपकी कौली होती है या हमारे पास स्टील की होती है, बस वैसी एक पेट्री डिश होती है। वहीं पे वो पेट्री डिश हो जाती है। अभी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो वो सर जो डाई का नाम बताया बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम से आवाज वो लिख के रख लीजिए, स्पेलिंग में बोलूंगा HOESCHT। हो गया सर। ठीक है, आप देखो मैं आपको थोड़ा सा समराइज करूंगा। फ्लो साइटोमेट्री क्या है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन में जो डिफरेंट काइंड के सेल है उनको सेपरेट करना है। समझ आ रही है बच्चों सबको? तो हाँ, उसमें आपने सेल को सेपरेट करना। मैंने एग्जांपल दी आपको सीमन की, हमें पता होता है उसमें स्पर्म्स हैं, और आपको ये भी पता है कि कुछ स्पर्म्स में X क्रोमोसोम होता है और कुछ स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम होता है, राइट? तो हमने स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम और स्पर्म कंटेनिंग Y क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। तो उस केस में हम ये टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो साइटोमेट्री, या इसको हम फैक्स भी कहते हैं, फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर एनालिसिस। याद रखना FACS, फ्लोरेसेंट लिख के रखो, फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर, SORTR, सेल सॉर्टर एनालिसिस। Sir, what is the full form of SSC? Full form of SSC. There was some spelling. इसमें था प्रोजेक्टर में? Yes sir. PPT previous slide में था। Yes sir. इसके पहले जो पिक्चर की स्लाइड थी इसमें या SSC and FSC। ये आ गया वही जो मैं आपको कह रहा हूँ, फ्लोरेसेंट सेल सॉर्टर। ओके सर। सर एक और एग्जांपल बताइए, जैसे सीमन का बताया गया है वैसे और कोई एग्जांपल? आप कोई भी ले लीजिए, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि आप कोई भी एग्जांपल ले, मैं आपको सिंपल का है, मतलब जैसे बाकी भी आप हम, क्योंकि अगर आप देख लीजिए, अगर हम सपोज ब्लड की ले लीजिए, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है आरबीसीज और आपको आइडेंटिफाई करना है ये व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हम पर्टिकुलर स्टेन यूज करेंगे, तो वो उसको मतलब एक मिनट है रे, हाँ, हम एक लिशमैन स्टेन ले लेंगे, लिशमान LEISHMAN। आप सिंपल एक ब्लड ले लीजिए, तो ब्लड में आपने वो स्टेन यूज करना है, तो वो लिशमान स्टेन क्या करता है कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स को ज्यादा इंटेंसली स्टेन करता है एज कंपेयर टू दिस रेड ब्लड सेल्स। तो बाद में उसको जब सेल सॉर्टर इंस्ट्रूमेंट में हम डाल देते हैं, तो वहां से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स कौन से हैं और जो रेड ब्लड सेल्स कौन से हैं। उसमें रीजन ये आ जाता है कि सिंस व्हाइट ब्लड सेल जो है उनमें न्यूक्लियस होता है, इसलिए वो डार्कली स्टेन हो जाते हैं, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे डोंट हैव द न्यूक्लियस, सो दे गेट लाइटली स्टेन। तो उस केस में भी आप ये एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं। गेटिंग मी? सर और बोलिए, व्हाट इज न्यूक्लियस? What is meant by nucleus, sir?
Nucleus is a cell organelle that is present in the cell, commonly called as the director of the cell. क्योंकि जो सेल की एक्टिविटीज है उन सारी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक है ना, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्रोमोसोम कह रहा हूं, मैं जीन्स कह रहा हूं, वो सारा का सारा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। जिस टाइम आप सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो उसमें एक सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। बेटा ये तो बहुत ही बेहद सिंपल चीज है कि जो सेल है, सेल के दो पार्ट है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। सर आगे आप बढ़े। और कोई क्वेश्चन इसमें? आप लोग एग्जाम में अगर आया तो दो एग्जाम, आप जो सिमन वाली एग्जांपल दी मैंने, आप वो ले लेना, ज्यादा वो उसमें हो जाएगा आपका क्लियर लिखते जाओ। संध्या साहू और अवधेश प्रजापति, इनका बार बार माइक्रोफोन ऑन हो जा रहा है। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, संध्या साहू और अवधेश प्रजापति। बहुत अच्छा सर बता रहे हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिए, जल्दी आपको मिलेगा नहीं। ओके सर। ठीक है, फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं। संध्या साहू आपका माइक्रोफोन फिर से ऑन हो गया। हाँ, फिर जो कुछ एप्लीकेशंस है यहाँ पे ये देख लीजिएगा, उतनी वो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लेवल की, लेकिन तब भी कभी आगे तो ये काम आ जाएंगी। इतना मेन आप ये याद रख लीजिएगा कि हम डिफरेंट सेल्स को इसमें वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, बाकी ये हायर लेवल की है, बट आप रख लीजिएगा मटेरियल, ये कभी काम आ जाएगा। देन उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपका इसमें आता है जो मुझे असाइन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम पेंटिंग। दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम पेंटिंग। क्रोमोसोम पेंटिंग जो टर्म है, सबसे पहले इसको 1983 में पिंकल ने यूज किया था। ठीक है, और इट सिंपली refers to the hybridization of fluorescently labeled chromosome specific composite probe pooled to cytological preparations. क्रोमोसोम पेंटिंग अलाउज द, मैं पहले रीड करूंगा उसके बाद मैं समझा दूंगा क्या चीज है ये। क्रोमोसोम पेंटिंग अलाउज द विजुअलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स इन मेटाफेस और इंटरफेस सेल, लेकिन ज्यादातर हम मेटाफेस पे ही रखते हैं इसमें। क्रोमोसोम पेंटिंग coupled with fish is now used to enhance the identification of chromosomal rearrangement, breakpoints and also the extra chromosomal material. ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ फ्लो सॉर्टेड, लीव दिस, ये ज्यादा हो जाएगा। इट इज एबल टू आइडेंटिफाई नॉट ओनली द क्रोमोसोमल ओरिजिन ऑफ मार्कर क्रोमोसोम बट आल्सो द रीजन्स एंड द ब्रेक पॉइंट इन्वॉल्व। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? The usual starting material for the production of chromosome painting is flow sorted chromosomes. Flow sorted भी इसमें एक चीज याद रख लेना कि एक टर्म आती है कैरियोटाइप, वो बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बेसिक वो चीज है कि कैरियोटाइप में हम क्या करते हैं कि जो 23 पेयर्स हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 7 ग्रुप्स। ठीक है, अब याद रखना, मैं तेज तेज बोलता जाऊंगा, अपनी कॉपी ले लीजिए और पेन और लिखते जाओ। कैरियोटाइप सिंपली मींस अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम into 7 groups on the basis of size and shape। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, कैरियोटाइप। अब ग्रुप ए, 7 ग्रुप्स में हम लिखना। ग्रुप ए में लिखो, इट कंटेन्स 3 पेयर्स ऑफ लार्जेस्ट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ग्रुप ए 3 pairs of largest metacentric chromosome. Group B 2 pairs of largest sub metacentric chromosome, जिसमें चौथा और पांचवा क्रोमोसोम आएगा। ग्रुप ए में 1 2 3 4 और 5th आ जाएंगे ग्रुप बी में। ग्रुप सी में लिखो 7 pairs of medium sized sub metacentric chromosome।
ठीक है, उसमें जो आता है क्रोमोसोम आपका आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर आ जाए ग्रुप डी, डी कैपिटल, हर एक अल्फाबेट कैपिटल। ग्रुप डी में लिखो 3 पेयर्स ऑफ लार्जेस्ट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ACROCENTRIC। उसमें आ जाएगा आपका 13, 14, 15 क्रोमोसोम पेयर। फिर लिखो ग्रुप ई, 3 पेयर्स ऑफ स्मॉलेस्ट सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। उसमें आ जाएगा आपका 16, 17 और 18 वाला क्रोमोसोम, 16, 17, 18। फिर लिख लीजिए ग्रुप एफ, उसमें आ जाएगा 2 पेयर्स ऑफ स्मॉलेस्ट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। उसमें आ जाएगा आपका 19 और 20, 19 और 20th पेयर। और लास्ट ग्रुप है ग्रुप जी। ग्रुप जी में लिखो 2 पेयर्स ऑफ स्मॉलेस्ट, 2 पेयर्स ऑफ स्मॉलेस्ट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर 21 और क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, सो यहां पे अभी तक हमारे पास 22 पेयर्स आए, अब हमारे पास एक पेयर बचा। सो उस पे लास्ट पे लिख के रखो 23rd पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, जो XX और Y होगा या XX होगा, और उसको हम सेपरेटली रखते हैं, एंड इट इज प्लेस्ड सेपरेटली। ये याद रखना कैरियोटाइप कैसे होता है। अब देखो इस डायग्राम को आप देख रहे हो, इस टाइम हम क्रोमोसोम को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को देख लेना, मतलब ये आपने ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट समझने के लिए आप याद रखना कि जब हम क्रोमोसोम्स को प्रिपेयर करते हैं लिम्फोसाइट कल्चर से, और हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी आती है। ठीक है, आपको जो बीच में ये डार्क स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये बैंड्स होते हैं जब हम बैंडिंग करते हैं। ठीक है, लाइट डार्क स्ट्रक्चर्स, ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं। मींस जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देख लेते हो क्रोमोसोम को, हमें ऐसे क्रोमोसोम दिखते हैं, और उसके बाद हम इसकी फोटोग्राफी लेते हैं और काउंट करते हैं कितने हैं, वो आ गया कि फिर इनको अरेंज करते हैं कैरियोटाइप के, जो मैंने आपको अभी लिखा है, जो मैंने अभी आपको लिखा है। अब देखो, आप देखते हो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जहां पे मैं कर्सर ले रहा हूं, इसी के नीचे दूसरा है, इसको हम बोलते हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक, अब इसमें ओवरलैपिंग हो रही है इस वाले क्रोमोसोम में, इस वाले क्रोमोसोम में ओवरलैपिंग आप देख रहे हो रही है। ऐसे क्रोमोसोम में हमें कैरियोटाइप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, जो ये चीजें हैं यहाँ पे हमें ये टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, जैसे फिश आ गई या गिश आ गई, इन टेक्निक्स में यूज करना पड़ता है। अब क्रोमोसोम पेंटिंग में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी स्लाइड्स हमने प्रिपेयर की, यहाँ पे भी हमने क्रोमोसोम प्रोब्स यूज करने हैं, लेकिन यहाँ प्रोब्स क्या होंगे कि वो फ्लोरेसेंट लेबल्ड होंगे, उसमें डिफरेंट कलर्स के हमारे पास फ्लोरेसेंट प्रोब्स होते हैं, जो हर एक कैरियोटाइप ग्रुप के क्रोमोसोम को वो कलर कर लेते हैं। एक 1 मिनट आप, ये आ गया प्रिंसिपल इसका। हाँ, ये देख लीजिए, ये चीज मैं लिख रहा हूं, इन सितु या हो गया,
hybridized onto metaphase spread or interphase nuclei, duplexes form between complementary sequences in the chromosome painting and target material. Visualization of the labeled DNA with fluorochrome or enzyme conjugated affinity reagent system resulted in the painted chromosome being strikingly identified in metaphase spread and the interphase nuclei. ठीक है, it in its earlier stages leave this thing. हाँ, अब इसमें हमने क्या करना होता है कि मैं अगेन उस पे आ जाऊंगा, आपकी जो डायग्राम है यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंट क्रोमोसोम है, फिर आप ये दूसरी साइड पे बी वाली डायग्राम देख लीजिए कि आपको यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट कलर के दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हम एक फ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं या फ्लोरेसेंट प्रोब्स यूज करते हैं, अगेन लेबल्ड प्रोब, और हर एक क्रोमोसोम स्पेसिफिक प्रोब होता है। तो वो क्रोमोसोम स्पेसिफिक प्रोब क्या करेंगे, वो हर पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर बाइंड कर लेते हैं। एक ये चीज आती है। दूसरा हम क्या करते हैं कि जो मैंने आपको कैरियोटाइप लिखा है, ठीक है, कैरियोटाइप मैंने आपको पहले कहा कि ये लार्जेस्ट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक, ये स्मॉलेस्ट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। वो प्रोब क्या करेंगे कि या तो सिर्फ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के ऊपर जो है बाइंड करते जाएंगे, तो आपको वहां पे क्रोमोसोम वो पूरे तरह वहां पे, अब सिंस उसमें फ्लोरेसेंट जो है वो डाई भी यूज हो जाती है, वो उसको पूरी तरह उसको पेंट या उसको कलर कर देता है, तो हमें वो आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे देखो क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, मतलब ये एक क्रोमोसोम पेयर है, 4th क्रोमोसोम। इसी तरह क्रोमोसोम 8 पेयर है। तो जब मैं क्रोमोसोम 4 का फ्लोरेसेंट प्रोब यूज करूंगा, वो क्या करेगा कि इस क्रोमोसोम के दोनों जो पेयर्स हैं उनको पेयर करेगा। मींस आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये पेयर फॉर्म है। इसी तरह सपोज कर लीजिए अगर आपने क्रोमोसोम नंबर 21 का प्रोब यूज किया, तो वो फ्लोरेसेंट प्रोब होगा। वो क्या करेगा कि उस क्रोमोसोम के जो दोनों पेयर हैं उनको कलर करेगा या पेंट करेगा, या उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा और वहां पे उसका डिफरेंट कलर आएगा। ये नहीं होता जरूरी ऑरेंज वगैरह, कोई भी कलर जो भी उन्होंने डाई यूज की होगी उस पर्टिकुलर प्रोब में। अब यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिएगा कि अब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोब आ गया विच इज विदाउट द फ्लोरेसेंट डाई, दूसरा प्रोब जो है विच इज विद द फ्लोरेसेंट डाई, ठीक है। तो वो इस केस में हमें यूटिलाइज हो जाएगा। मींस इंटरफेस सेल या जो प्रोफेज स्टेज या मेटाफेज स्टेज पे हो जाएगा कि प्रोसीजर इसमें सेम। आपने स्लाइड ली, अब आप यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूं फ्लोरेसेंट प्रोब, जिसमें पर्टिकुलर डाई बेस्ड प्रोब जो होते हैं, तो वो हर एक क्रोमोसोम का स्पेसिफिक होगा। लेकिन वहां पे हम बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल केस में आपने यहाँ पे सिंपली देखना है कि जो 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो कौन कौन सा है। तो वो 4th क्रोमोसोम का फ्लोरेसेंट प्रोब जो है आप यूज करोगे और वो इसके ऊपर जो है फाइनली बाइंड करेगा। और उसके बाद इसी तरह आप डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बाइंड को, जैसे यहाँ पे आप 8 क्रोमोसोम 8 देखते हो, ये ऑरेंज बेस्ड है, इसी तरह बाकी भी क्रोमोसोम होते हैं। तो इन कंक्लूजन ये याद रख लीजिए, लिम्फोसाइट कल्चर से हमने स्लाइड प्रिपेयर की और फिर क्रोमोसोम पेंटिंग में हम क्या करेंगे कि फ्लोरेसेंट प्रोब को हम यूज करेंगे और वो फ्लोरेसेंट प्रोब जो है वो बाइंड कर देगा पर्टिकुलर जिस क्रोमोसोम का आपने प्रोब लिया उसके दोनों पेयर्स पे वो बाइंड करेगा। तो आपको ये पता चलेगा हाँ ये एक क्रोमोसोम है और उसका पार्टनर यहाँ पे। और अल्टीमेटली जब आप डिफरेंट क्रोमोसोम के फ्लोरेसेंट प्रोब यूज करोगे तो हमारे पास एक कलर्ड सी इमेज बन जाती है, तो जिसको अब मीन वो सारा का सारा सेल जो है वो डिफरेंटली कलर्ड हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम पेंटिंग, ठीक है। सो इसमें हम with these techniques chromosome painting has found its application using marker chromosome in clinical and cancer cytogenetics। मीन जो भी डिजीज वगैरह होगी वहां पे ये हेल्पफुल होता है।
to find out the location of specific gene located on specific detection of chromosome abnormality. तो ये जो इसकी एप्लीकेशंस वगैरह है ये सिंपली बेस्ड होती है मींस कि फिश जो ये क्रोमोसोम पेंटिंग है ये क्रोमोसोम पेंटिंग जो है इट विल बी हेल्पफुल इन एसोसिएशन विद द फिश टेक्निक। ठीक है, अब आपके पास टाइम है पूरा, अब आप पूछते जाइए जो भी है, डिस्कशन में मैं ज्यादा आपको क्लियर करूंगा कंसेप्ट जो भी है। अब जो भी आपको क्वेरी है आप पूछ लीजिए। सर क्रोमोसोम पेंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉमन इसका कंसेप्ट जो है इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द फिश टेक्निक। मैंने आपको ये कहा कि आपने स्लाइड ले ली, ठीक है, नॉर्मल फिश में हम क्या कर लेते हैं कि वहां पे आप प्रोब डीएनए यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे हम फ्लोरिसेंट मींस की पर्टिकुलरली कोई डाई बेस्ड प्रोब यूज करेंगे। जैसे मैं सपोज कर लीजिए क्रोमोसोम नंबर 8 का आपने प्रोब लिया, तो अब एक सेल में क्रोमोसोम 8 के कितने क्रोमोसोम पार्टनर होंगे? 2 क्रोमोसोम होंगे, तो वो उसके ऊपर बाइंड करेगा। सपोज करो और डाई जो यूज हुई है वो रेड कलर की है, तो वो रेड कलर की डाई जो है क्रोमोसोम 8 के दोनों क्रोमोसोम पे ऐड हो जाएगी। ठीक, आप अब क्रोमोसोम 9 की ले लीजिए, उसके लिए जो आप प्रोब यूज कर रहे हो उसके लिए जो डाई उनने यूज की है वो ऑरेंज कलर की होगी, तो क्रोमोसोम 9 के दोनों को ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली 23 पेयर्स के जो हर पेयर का एक सेम रहेगा, बाकी जो है डिफरेंट होती जाएगी। दैट इज द क्रोमोसोम पेंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल। थैंक यू सर, थैंक यू। मींस फिश के समेत हो जाएगा ये। सर शाबाश। सर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है? हाँ बेटा, इसमें याद रखना कि जो मैंने आपको कैरियोटाइप कहा, एक चीज याद रखना कि ह्यूमंस में सिर्फ 3 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है मेटा, एक होता है सबमेटा, एक होता है एक्रोसेंट्रिक। क्रोमोसोम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, और एक और चीज होती है उसको कहते हैं क्रोमेटिड, जिनको आप क्रोमोसोमल आर्म्स भी कहते हो। तो ये सेंट्रोमियर क्या करता है, उन क्रोमोसोमल आर्म्स को आपस में बाइंड करता है, क्योंकि एक मेटाफेज क्रोमोसोम में जो 2 आर्म्स या 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, तो उनको आपस में जो ज्वाइन करता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। नाउ डिपेंड कि वो सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमोसोम पे कहां है, हमारे पास 3 तरह के क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। अगर सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में है, हम बोलते हैं कि ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। अगर सेंट्रोमियर जो है वो थोड़ा सा सेंटर से अवे है, तो एज ए रिजल्ट क्या होती है, एक क्रोमेटिड लॉन्ग होगी, एक छोटी होगी, तो हम कहेंगे कि वो सब मेटासेंट्रिक है। और अगर सेंट्रोमियर जो है वो टर्मिनल एंड पे होगा, टर्मिनल एंड मींस एंड से थोड़ा सा नीचे, तो हम उसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके सर। सर हाँ बोलिए। सर क्रोमोसोम पेंटिंग में किस प्रकार का डाई मतलब यूज करते हैं सर, कौन सा डाई यूज करते हैं? मतलब इट वेरीज, मतलब उसमें हम पर्टिकुलरली जो होती है कोई भी फ्लोरिसेंट डाई हम यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्लोरो हम मतलब जो पर्टिकुलर कलर यूज वगैरह करते हैं, और कोई डाई वगैरह, मतलब इसमें हम पर्टिकुलर नहीं हम कहेंगे। बेसिकली हम जो वर्ड जो इसमें यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरोक्रोम, तो उस बेस पे हम ये होता है। यस, थैंक यू सर। और कोई? शाबाश, और कोई है? अच्छा, और कोई किसी के मन में कोई क्वेरी हो? सर मैं कैंसर में इसका, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर कैंसर में कैसा यूज करेंगे इसका? कैंसर में इसमें क्या हो जाता है कि नॉर्मली अगर आपने कैंसर सेल देखा होगा ना कि उसमें हमेशा मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें पॉलीप्लॉइडी लेवल का आ जाता है। मतलब उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो है कभी भी 46 नहीं होता, वो 90s उसमें चला जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि अगर उसमें जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मैंने एक स्लाइड देखी थी कैंसर सेल पेशेंट की, तो उसमें मुझे एक पेयर पे कोई 8-8 क्रोमोसोम दिखे।
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये आप किस में क्रोमोसोम पेंटिंग का पूछ रहे हो मुझे? हाँ सर, क्रोमोसोम पेंटिंग का। हाँ, उसमें ये क्या करेंगे हम कि जिस टाइम हम फ्लोरेसेंट प्रोब्स हम यूज करेंगे, ठीक है, तो वो फ्लोरेसेंट प्रोब क्या करेगा कि जितने उसमें सिमिलर क्रोमोसोम है वो उनको कलर कर देगा। जैसे मैंने आपको कहा ना, नॉर्मल केस में क्रोमोसोम नंबर 7 को जो डाई आप यूज कर रहे हो, जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम 7 के लिए प्रोब आपने यूज किया, वो 7 के दोनों पेयर्स को ये करेगा। लेकिन कैंसर पे पेशेंट में क्या होता है कि वहां पे 8-8, 9-9 क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, तो जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे उनको वो वहां पे वैसा ही वो डाई करेगा, तो जिससे हमें पता चलेगा हाँ ये 8 क्रोमोसोम एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। उस वे से वो हेल्प करेगा उसमें। मैंने एक पेशेंट स्टडी क्या किया था, मेरी एक कलीग थी, तो उसका मैंने स्लाइड देखी थी, तो उस पेशेंट में मैंने 101 सर्वाइकल कैंसर था, उसमें 101 क्रोमोसोम थे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि क्रोमोसोम नंबर, जैसे मैंने आपको कहा ग्रुप में नॉर्मल पर्सन में देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम आए? 6 क्रोमोसोम ही आए ना सर। राजकुमार? हम्म। ठीक है ना, 6 क्रोमोसोम आए। हाँ सर। 3 पेयर्स, लेकिन वहां पे उसमें 18 क्रोमोसोम थे, लेकिन हमने उसको इसलिए वहां पे रखा क्योंकि सारे एक जैसे थे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब मैं क्रोमोसोम नंबर 1 स्पेसिफिक जो है फ्लोरेसेंट लेबल्ड प्रोब यूज करूंगा, वो जितने भी उसके मतलब उसके सेम वाले होंगे, वो सबको वो वही सेम कलर करता जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए पेंटिंग मतलब क्यों आई, वो उसको पूरा कलर कर देता है डाई। अच्छा सर, ठीक है सर। सर जो फ्लो साइटोमेट्री में बताए थे होस्ट का, सर वो क्या होता है बता दीजिए। वो बेटा बेसिकली वो एक डाई है जो सेल्स को स्टेन करता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हमने अगर कंफर्म करना होगा कि किस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है और किस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, तो हमने क्या करना होता है, सैंपल हम वहां पे सीमन ले लेंगे। तो आप उसमें वो डाई जो है वो ऐड कर लीजिए। वो क्या करेगा कि जो स्पर्म्स एक्स क्रोमोसोम वाले हैं वो उनको डार्कली स्टेन करेगा, और जो स्पर्म्स जो हैं वाई क्रोमोसोम वाले हैं उनको लाइटली स्टेन करेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम छोटा होता है और एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है। तो एज ए रिजल्ट जो है फिर क्या होगा कि जब वो कंप्लीट हो गया ये वाला प्रोसेस डाइंग वाला, तो जो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम के होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो वाई वाले होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ड्रॉपलेट की फॉर्म में, जिसे आप मिजल्स भी कभी आप कह सकते हैं। ओके सर। मैं ये मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में अभी वो डॉक्टर वर्मा आपके सर को भेज दूंगा, वो आपको आगे वो शेयर कर देंगे तो आपके एग्जाम्स के लिए। बस हो गया बच्चों? यस सर, यस सर। तो इतना बेसिक कंसेप्ट था। तो सर ये हमारे बच्चे बहुत ही बेहद ग्रामीण एरिया से आते हैं, और कुछ तो क्वेश्चन इनके ऐसे इन्होंने पूछे जो हमको भी बड़ा मतलब आश्चर्यजनक लगा कि भाई ये सेल न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म से अगर अनभिज्ञ हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना और पढ़ाने की आवश्यकता है। कोई नहीं सर, ये बच्चे होते हैं, ये चीजें तो चलती रहती हैं। हाँ बच्चे। तो सर आपने बहुत अच्छे ढंग से इन टेक्निक्स के बारे में बताया जो बच्चों के निसंदेह काम आएगी, न केवल एग्जाम के लिए बल्कि आगे के भविष्य में भी अगर ये याद रखेंगे तो इनको काम आएगी। तो सर आपका बहुत बहुत जी। बेसिकली ये प्रैक्टिकल बेस्ड वो टॉपिक है जी सर। और कभी अगर मौका लगा तो इनको प्रैक्टिकली ही थोड़ा सा मतलब ना वहां पे मतलब फेस टू फेस ज्यादा अच्छा रहता है वो डिस्कशन। तो हाँ कर लेंगे। तो सर आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से इन टेक्निक्स के बारे में बताया। निश्चित तौर पर हमारे बच्चे इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे, और इतने लाभान्वित हुए होंगे कि वो एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये उनके सिलेबस का हिस्सा था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनको अच्छा लगा होगा। और
आगे हम ये YouTube वाली जो वीडियो है वो उपलब्ध करा देंगे बच्चों को, बच्चे पढ़ लेंगे। देखिए सर इतने दयालु हैं कि वो आपको PDF भी दे रहे हैं कि आप अपना अध्ययन भी कर लीजिए, बस बच्चों केवल अध्ययन करने की देरी है। और देखिए सर बिल्कुल थकते नहीं हैं, काम करते रहते हैं। तो सर के बारे में हम इतना ही कहेंगे, और बच्चे लोग आप लोग भी इससे सीखिए कि अपने हौसलों को ये खबर करते रहो, जिंदगी मंजिल नहीं सफर है, चलते रहो। क्योंकि ज्ञान का कोई आदि अंत नहीं है, जितना भी आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आपका ज्ञानार्जन होगा और उतना ही आपको और पढ़ने की इच्छा होगी। तो सर राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे बच्चों के लिए। और ये कहना तो अप्रासंगिक है कि जब भी हम कहेंगे दोबारा आप उपलब्ध होंगे, तो ये कहना ऑलवेज तो बस सर इन्हीं शब्दों के साथ आपको, अपने प्राचार्य जी को, अपने जो हमारे डॉक्टर ब्रजेश जी हैं, सबको, प्रिय विद्यार्थियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। गुड बाय सर। आप लोग मेरा वो कांटेक्ट उसमें है, तो मैं आपको ये फीडबैक दे सकता हूँ, मटेरियल भी वगैरह। ओके सर।